Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer in economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So today we will discuss about the measurement of price elasticity of demand. So in the last lecture we discussed about the 5 degrees of price elasticity of demand, and what are those 5 degrees? These are the zero elastic demand, or we can call it perfectly inelastic demand. Number 2, less than unitary. Number 3, equal to unitary. Number 4, greater than unitary. And number 5, it's a perfectly elastic demand curve, or we can call it infinitely elastic demand curve, in which the answer of the price elasticity of demand is equal to infinity. So there are 5 degrees of price elasticity of demand. अब यहां से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है, जब हम ये कहते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी 5 डिग्रीज होती हैं। वो 0 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और इंफिनिटी हो सकता है। तब 5 आंसर तो हमारे हो सकते हैं, पर एक्चुअली आंसर है कितना वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर हमने उसका एक एग्जैक्ट आंसर पता करना है कि आंसर जो है वो 0 है, वो लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 तो कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोलूं कि 0.80 तो वो भी लेस देन 1 है, मैं बोलूं 0.20 तो वो भी लेस देन 1 है, अगर मैं बोलूं कि 0.90 तो वो भी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है, पर कितना वो हमें पता करना पड़ेगा। आंसर इक्वल टू 1 आ सकता है, आंसर ग्रेटर देन 1 आ सकता है। अब ग्रेटर देन 1 तो 1.25 is greater than 1, or 10 it's also greater than 1, 20 it's also greater than 1। तो greater than 1 है तो कितना वो भी हमें नहीं पता, फिर आंसर इंफिनिटी आ सकता है। So in order to get an exact answer of price elasticity of demand, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे methods जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक एग्जैक्ट आंसर जो है वो दे पाए कि अगर लेस देन 1 है तो इतना है, ग्रेटर देन 1 है तो इतना है, अगर 1 है तो फिर सिंगल ही है, 0 है या इंफिनिटी है। सो अब उसके लिए हमारे पास बेसिकली 5 मेथड्स जो हैं होते हैं जिनके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट दैट व्हिच इज द मेथड्स फॉर the measurement of price elasticity of demand. So what are those 5 methods? First method is called a percentage method, or we can call it proportionate method. So this is the first method which can be used for the measurement of price elasticity of demand. Second one is called a total expenditure method. This is the second method by which we can measure price elasticity of demand. Third is the point method, or we can call it geometric method for the measurement of price elasticity of demand. Geometric method. Number 4, it's a revenue method, and number 5, it's arc method. Arc method. So there are 5 methods for the measurement of price elasticity of demand: percentage method, total expenditure method, point method or geometric method, revenue method, and the arc method. But as far as the syllabus of +1 or +2 is concerned, we are only discussing first 3 methods for the measurement of price elasticity of demand: arc method and the revenue method. ये आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तब आप इसको पढ़ने वाले हैं। So in this lecture we discuss about these 3 methods: percentage method or proportionate method, number 2 total expenditure method, and number 3 point method or geometric method. So first of all we start with percentage method or a proportionate method. So what's this method? तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है वो है परसेंटेज मेथड।
ठीक है, ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? जो हमने सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया था मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वो क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. What's the formula? The formula is percentage method. तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिसिटी पहले क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज in price. So this is the percentage method or the proportionate method. So according to percentage method or proportionate method, what is price elasticity of demand? It's the ratio of a percentage change in quantity demanded with the percentage change in price. Okay, now it's done. Repeating my words. What is price elasticity of demand according to percentage method? It is the ratio of the percentage change in quantity demanded with the percentage change in price. Clear? तो अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे so that we can get a final formula. तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस का साइन जो है वो तो एज इट इज लगा रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? देखिए, वो कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज मींस 100, तो हम ऊपर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो नीचे प्राइस में चेंज भी किस में लेना है? परसेंटेज में, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज परसेंटेज डन। अब कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये वही बात आ गई जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कही थी कि जब भी हमने किसी भी तरह का चेंज पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या थी। ठीक, नंबर 2, फिर हम देखेंगे उसमें कितना चेंज आया। सो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये पर्सन का बिहेवियर जो है वो इतना चेंज हो गया। अब मुझे चेंज किसमें पता करना है? मुझे चेंज पता करना है डिमांड के अंदर। तो पहले क्या करूंगा मैं, पहले ना क्यू क्या है? ये मेरी इनिशियल डिमांड है कि मेरी पहले वाली डिमांड कितनी थी। अब उसमें मैंने क्या देखना है? चेंज देखना है। तो मैं बोलूंगा डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या हुआ? डेल्टा मींस चेंज, मतलब मैं ये देखूंगा कि पहले मेरी डिमांड क्यू थी, ठीक है, अब उसमें डेल्टा के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज आ गया। वैसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मुझे किसमें पता चेंज लगाना है? प्राइस में। तो मैं देखूंगा कि मेरा पहले वाला प्राइस जो है वो कितना था, P आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा उसमें कितना चेंज आया। चेंज क्या होगा? डेल्टा T। ठीक है, तो पहले वाला प्राइस P था और उसमें क्या हुआ? डेल्टा के अकॉर्डिंगली चेंज आया। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो ये माइनस साइन एज इट इज। सो डेल्टा Q अपॉन Q, इसको इन्वर्स कर लेते हैं, सो इट इज P अपॉन डेल्टा P। ठीक हो गया। जो डेल्टा वाले हैं वो एक साइड में रख लेते हैं, दूसरी साइड में ले जाते हैं। सो डेल्टा Q, ये डेल्टा P इधर ले आते हैं, डेल्टा P इनटू P अपॉन Q हो गया। अब सोचो कि ये डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q है डिमांड में आने वाला चेंज। दिस इज डेल्टा Q ना। अब चेंज कितना आया? सपोज करो कि अभी प्रेजेंट में मेरी डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स की है, पहले जो होती थी वो 10 यूनिट की होती थी, तो चेंज कितना आया? रिपीटिंग माय वर्ड्स, अभी डिमांड मैं कर रहा हूं 20 यूनिट्स की, पहले कर रहा था 10 यूनिट्स की, तो कितना चेंज आया? 10 का। कैसे पता लगा? 20 माइनस 10, तो डेल्टा Q किसके बराबर है? इट इज Q1 माइनस Q। व्हाट इज Q1? Q1 इज द प्रेजेंट डिमांड एंड Q इज द इनिशियल डिमांड। P, डेल्टा P में कितना चेंज आया वो कैसे पता लगेगा? इट इज P1 माइनस P। व्हाट्स P1? इट्स अ न्यू प्राइस। P इज द इनिशियल प्राइस। ये पहले प्राइस इतना था, अभी प्राइस इतना है, तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें प्राइस में चेंज पता लग जाएगा। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। सो हम इसको सारा थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें हमने क्या-क्या नोटेशंस यूज करी हैं। सबसे पहले तो हमने नेगेटिव साइन यूज किया, ठीक है, तो हम लिखेंगे नेगेटिव
sign is used to show inverse relation between price and demand। ठीक हो गया, नेगेटिव साइन क्लियर। एक एक करके चीजें देखिए। फिर क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या था, ये था हमारा चेंज इन डिमांड। देन इट इज डेल्टा पी, इट इज चेंज इन प्राइस। डन। देन इट इज क्यू। क्यू इज द इनिशियल डिमांड, ये आपकी स्टार्टिंग वाली डिमांड कितनी थी, ठीक है। Q1 इट इज योर न्यू डिमांड, ये आपकी प्रेजेंट डिमांड जो है वो कितनी है। फिर P, P क्या है, वैसे ही P आपका इनिशियल प्राइस होगा। P1 इट इज योर न्यू प्राइस। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें, उसके अकॉर्डिंगली आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्पेसिफिकली स्पीकिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो है उसको यूज करके आप आंसर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब ना कई बार क्या होता है, एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। और वो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको करने के टाइम पे आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि जब एग्जाम के अंदर आपको न्यूमेरिकल आए तो आप उसको गलत ना करें। हम बेसिकली यही फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। सो आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस P, P अपॉन Q, बिकॉज Q1 माइनस Q इज डेल्टा Q, P1 माइनस P इज डेल्टा P। ठीक हो गया। तो हम इसको जो है वो यूज करने वाले हैं विद एन एग्जांपल। तो पहले हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे और उससे फिर इस चीज को और ज्यादा समझेंगे, ठीक है। तो कैसे, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कॉपी पे साथ के साथ लिखें तो अच्छा रहेगा। सो मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, व्हेन द प्राइस of a commodity is ₹5, its 80 units are demanded, but when the price falls to ₹4, its 100 units are demanded. Find price elasticity of demand। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्जाम के अंदर आएंगे। पहली बात तो आपने ये देखना है कि पहले लास्ट डिमांड फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कीजिए। वो कहते हैं जब किसी कमोडिटी का प्राइस 5 रुपीस था तो इसके 80 यूनिट्स की डिमांड जो है वो हो रही थी। प्राइस 5 से फॉल करके हो गया 4 और डिमांड 80 से बढ़ के हो गई 100, तो लास्ट डिमांड इंप्लीमेंट हो गया। अब आपका सबसे पहला काम ये रहेगा इस न्यूमेरिकल के अंदर कि जो जो आपको गिवन है आपने पहले वो लिखना है, ठीक है। अब आपको पहले वाला प्राइस, स्टार्टिंग वाला प्राइस कितना दिया है 5, जो इनिशियल प्राइस होता है वो क्या होता है P, तो P कितना है 5, और इनिशियल डिमांड वो कितनी है 80। ठीक हो गया, इनिशियल प्राइस 5 और इनिशियल डिमांड 80। नाउ द न्यू प्राइस किससे डिनोट करना है, P1 वो कितना है 4 और न्यू डिमांड यानी कि Q1 वो कितनी है 100। ठीक हो गया, जो पहले दिया है सबसे पहले वो लिख लीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो अब हम लगाएंगे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, कैसे, माइनस लगाया, उसके बाद डेल्टा Q डेल्टा P अपॉन Q। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें ना सीधा वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा Q देखेंगे, पहले 80 था 100 है तो 20 आ गया, प्राइस जो है पहले 5 था 4 हो गया तो 1 आ गया। जैसे ही उन्होंने ये पुट किया वैसे क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो अगर आपने गलती से बचाना है तो कम से कम एक स्टेप और ले लीजिए, आपके गलती करने के चांसेस जो है वो 0 हो जाएंगे। कैसे, डेल्टा Q किसके बराबर है, इट्स Q1 माइनस Q, डेल्टा P इट्स P1 माइनस P एंड मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपने क्या करना था, आपने कहा था कि डेल्टा Q कितना चेंज हुआ, पहला 80 था अभी 100 है तो 20 का चेंज आया, आपने यहाँ पे 20 लिख देना था। प्राइस 5 से 4 हुआ 1 आया, आपने यहाँ पे 1 लिख
देना था, गड़बड़ यहीं पे हो जाती थी। क्यों? क्योंकि प्राइस 5 से 4 हुआ है, यानी कि आंसर -1 में आना था। तो यहाँ पे कई बार हम गलती से 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। एक स्टेप और देखें कि जब डेल्टा Q को हम बोलेंगे Q1 Q और डेल्टा P को बोलेंगे P1 P। अब वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस एज इट इज लगा हुआ है। Q1 कितना है? 100, Q कितना है? 80, P1 कितना है? 4, P कितना है? 5, P कितना है? 5, Q कितना है? 80। डन। तो ये आपकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब माइनस साइन एज इट इज, 20 डिवाइडेड बाय -1, 5 डिवाइडेड बाय 80, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये 4 पे कैंसिल, तो इट्स 5/4, तो आंसर इज 1.25 which is more than unitary. So आपका न्यूमेरिकल डन। तो इतना न्यूमेरिकल जो है वो आपको 4 मार्क्स में आने वाला है और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी के जैसे ही। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसे 5 को चेंज कर देंगे, 80 को चेंज कर देंगे, ये 4 को चेंज कर देंगे, ये 100 को चेंज कर देंगे। पहले हमने प्राइस 5 से 4 किया था, कम किया था, तो डिमांड हमने बढ़ाई थी, उल्टा कर देते हैं। अब प्राइस जो है वो हम कर देते हैं 8 और 8 के अकॉर्डिंगली डिमांड जो है वो है 80 यूनिट्स की। ठीक हो गया, प्राइस बढ़ के हो गया 10 रुपीस और डिमांड जो है वो 80 से कम हो गई 50 यूनिट्स की। ठीक है, प्राइस बढ़ा, 8 to 10 हुआ, डिमांड 80 से कम हो गई 50 हो गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जो दिया पहले लिखो, पहले वाला प्राइस P 8 है और उसके अकॉर्डिंगली Q कितना है? 80, न्यू प्राइस P1 कितना है? 10 और न्यू डिमांड Q1 वो कितनी है? 50। ओके, जो पहले दिया है वो हमेशा लिख लो, बाकी की बातें बाद में। तो अब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q डेल्टा P P अपॉन Q। ठीक है, एक स्टेप और लेंगे, माइनस Q1 माइनस Q P1 माइनस P P अपॉन Q minus as it is, what's the value of Q1? It is 50 minus 80. 50 minus 80, then 10 minus 8. What's the value of P? It's 8. What's the value of Q? It's 80. So अब यहाँ पे आ गया minus 30 divided by 2, 8 by 80, 0 0 cancel, 0 0 cancel, 8 8 cancel. So 3/2, so answer is 1.5, which is again more than unitary. So this is your formula for the measurement of price elasticity of demand by using proportionate or the percentage method. अब इसमें एक चीज और करते हैं, इसमें आपको कई तरह के जो वेरिएशंस हैं इस फॉर्मूला के अंदर वो देखने को मिल सकते हैं। वो क्या है, एक और कर लेते हैं इसी केस में, when the price elasticity of demand of a commodity is 2, a price elasticity demand आपको अब भी given है, then at a price of ₹10 its 100 units are demanded. ठीक है, what will be the new demand when the price falls to ₹5? ठीक, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा था जो दिया हुआ है पहले वो लिखना है, क्योंकि जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। अब जो जो दिया हुआ पहले तो वो लिखो। वो क्या कहता है कि when the price elasticity of demand of a commodity is 2, यानी आपको ऑलरेडी elasticity of demand 2 given है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या given है, कहता है then at a price of ₹10, तो स्टार्टिंग के अंदर प्राइस जो था P वो 10 था, its 100 यूनिट्स आर डिमांडेड, तो Q कितना था
100 व्हाट विल बी द न्यू डिमांड। अब वो पूछ रहा है कि न्यू डिमांड कितनी होगी, मतलब हमें Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। When the price falls to ₹5, मतलब नया प्राइस P1 उसने हमें दे दिया कितना है 5, वो हमें बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस 5 हो गया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू डिमांड, मतलब हमने Q1 को ढूंढना है। कुछ नहीं करना, एज यूजुअल जैसे हम फॉर्मूला करते हैं वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे विदाउट एनी चेंज। तो इलास्टिसिटी माइनस लगाया डेल्टा Q डेल्टा P अपॉन Q माइनस एज इट इज लगा, ठीक है। इधर इलास्टिसिटी एज इट इज रखा हुआ है Q1 माइनस Q P1 माइनस P अपॉन Q। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो जो आपको पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो नहीं पता उसको छोड़ दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। इलास्टिसिटी हमें पता है वो 2 है, माइनस लगा हुआ है, Q1 पता नहीं वो हमने ढूंढना है, Q कितना है 100, P1 5, P 10, Q 100। वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस लगा Q1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 5 10 बाय 100, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा 2, इधर 2 है, इधर Q1 माइनस 100, ठीक है, Q1 माइनस 100 नीचे 5 और ये 10, ठीक है, तो 5 और 10 कितने हो गए 50 हो गया। अब इसको उठा के इधर लाता है तो कितना हो गया 100, Q1 माइनस 100, तो Q1 कितना 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, तो आपकी नई डिमांड जो है यहाँ पे कितनी आ गई 200, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, अब चेक करिए कि जब प्राइस कम हुआ तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड पहले से बढ़नी चाहिए थी, पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 200, ठीक हो गया। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए थी, आपका आंसर बढ़ के आया, देन इट इज करेक्ट। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना है। अब उस क्वेश्चन के अंदर ना मैं गलती करने वाला हूं, मतलब मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन गलत करने वाला हूं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कैसे, अब आपने ये पकड़ना है कि मैंने गलती कहां पे की, पहले गलत करेंगे उसके बाद ठीक करेंगे, क्योंकि पहले गलत करेंगे तो पता होगा भाई यहाँ पे ये गलती करी है, अगली बार नहीं करनी, ठीक। चलिए, तो मैंने लिखा व्हेन प्राइस elasticity of demand of a commodity is -3, then at a price of ₹20 its 100 units are demanded. When the price falls to ₹10, then what will be the value of new demand, ठीक है। तो हमें इस चीज को ढूंढना है, तो जो जो दिया पहले लिखो। तो इलास्टिसिटी हमें गिवन है कितनी -3, ठीक है, प्राइस P हमें गिवन है 20 और उसके अकॉर्डिंगली हमें डिमांड गिवन है Q दैट इज 100। अब न्यू प्राइस, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹10, तो हमें न्यू प्राइस पता है 10 और हमें न्यू डिमांड यानी कि Q1 ढूंढना है, ठीक। तो फॉर्मूला लगाते हैं, अब मैं गलती करने वाला हूं पहले बता रहा हूं, तो माइनस लगा, ठीक है, डेल्टा Q डेल्टा P अपॉन Q, ठीक। अब देखते जाइएगा मैं कहां पे गलती करता हूं, आपने ये पकड़ना है कि मैं गलती कहां पे कर गया। गलती अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपको पता लगेगी जब मैं एंड में जाके आंसर निकालूंगा, तब आपको गलती पता लगेगी यहां पे गड़बड़ होगी, ठीक है। सो देखते जाइएगा, कहीं मैं ऊपर नीचे कुछ ना कर दूं, तो डेल्टा Q1 माइनस Q P1 माइनस P अपॉन Q,
अभी तक मैं ठीक चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी हमें गिवन है -3, माइनस लगा, ठीक है। Q1 कितना है वो हमें पता नहीं, वो हमने ढूंढना है। माइनस Q कितना है 100, P1 कितना है 10, P कितना है 20 इनटू P कितना है 20 और Q कितना है 100। ठीक हो गया। सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 तो Q1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय -10 20 बाय 100, ठीक है। तो ये 5 पे जाके कैंसिल होता है, ठीक है। अभी मैं ठीक चल रहा हूं। अब हमारे पास क्या बचा, इधर 3 है, इधर Q1 माइनस 100 है डिवाइडेड बाय -10 इनटू 5 दैट इज -50। देख लीजिए यहाँ पे -10 पड़ा है, 20 था 100 था, मैंने कैंसिल कर दिया, 5 आ गया। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50 एंड इट्स -50। ठीक, इसको उठा के इधर ले जाइए तो कितना हो गया -150 Q1 -100, ठीक है। अब ये माइनस क्या है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, सो -150 प्लस 100, तो न्यू डिमांड इज -50। ठीक हो गया। अब हमारी नई डिमांड जो है वो कितनी आ गई -50। चेक कीजिए, पहली बात तो ये कि दो मेजर मिस्टेक हुई। पहली मिस्टेक क्या हुई कि प्राइस फॉल करा, 20 से कितना हुआ 10, तो आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो डिमांड 100 से -50 हो गई, कम हो गई ना, है ना। हम यहाँ पे भी गड़बड़ है, कम सोचो भी। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप किसी चीज की डिमांड करेंगे ही। मतलब अगर मैं ये मार्कर खरीदने जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इस मार्कर को खरीदूंगा ही नहीं। यानी अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे सोच लें तो किसी भी चीज की डिमांड कितनी हो सकती है, 0। -50 डिमांड कैसे कर सकते हैं, तो ये सोच के देखो, -50 तो डिमांड हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब जो हमने ये आंसर निकाला -50, वो हमने गलत निकाला। कहां पे गलत निकाला, और मैंने वो ब्लंडर मिस्टेक कहां पे करी, जब मैंने ये स्टेप लिया। ठीक, अब ये स्टेप क्यों लिया, तो अगर आप पिछला न्यूमेरिकल और अभी वाला न्यूमेरिकल दोनों को देखें तो उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस था। जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन थी वो गिवन थी 2। अगर आपने कॉपी पे नोट किया दैट्स वेरी गुड, नहीं किया तो आप इसी लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इलास्टिसिटी कितनी गिवन थी 2, यहाँ पे कितनी गिवन है -3, वहां पे प्लस का 2 गिवन था, यहाँ पे माइनस का 3 गिवन है। यानी सोचिए, हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी को हम हमेशा माइनस में मेजर करते हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, यानी हमने दोबारा ये माइनस जो है वो नहीं लगाना था। हमने यहाँ पे क्या किया, इधर -3 भी लगा दिया और इधर फिर से माइनस लगा दिया, इसलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आया। कैसे आया, आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझिए। अब सोच के देखो कि ये हमें Q1 नहीं पता, हम इसको दोबारा से सॉल्व करने वाले हैं। अब सोच के देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ये हमें गिवन था इतना। अब हमें ये इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पड़ी है वो किसमें, ED किसमें, प्लस में, पर हमें जो ED दिया है वो किसमें दिया हुआ है, माइनस में। ये प्लस में है, हमें माइनस में दिया हुआ है, मतलब हमें इस चीज को क्या करना है, माइनस बनाना है। अब सोचो कि इसको माइनस बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसमें बन जाएगा, माइनस में बन गया। पर अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, Q1 -Q P1 -P P upon Q। यानी माइनस सिर्फ एक बार लग सकता है, 2 बार नहीं लग सकता। वहां पे क्या था, लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव नंबर में गिवन थी, यानी ये 2 दिया हुआ था। अब ये भी प्लस है तो वो भी प्लस में था, तो मैंने प्लस प्लस पुट कर दिया। यहाँ पे मैं माइनस एज इट इज लेके चलता रहा। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में मुझे जो इलास्टिसिटी है वो -3 गिवन है, अब यहाँ पे प्लस पड़ा है, मतलब मुझे दिया माइनस में हुआ है, ये प्लस पड़ा है, तो पहले इस प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर माइनस लग जाना है और इधर माइनस कट हो जाना है, तो यही हमने गलती जो है वो करी। ठीक हो गया। अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैसे करेंगे, अब देखो इलास्टिसिटी कितना गिवन है, -3,
आ गया। अब ये वाला माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितना हमें नहीं पता, Q कितना 100, P1 कितना 10, P कितना 20, P कितना 20, Q कितना 100, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ये 5 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाइए। अब इधर -3 पड़ा है, Q1 -100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आया -10, ये आया 1/5, 1/5 आ गया। -3 एज इट इज, Q1 -100 डिवाइडेड बाय -50, ठीक हो गया। अब इस -50 को इधर लेके आइए, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो सकते हैं, या इस -50 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, Q1 -100, सो व्हाट्स Q1, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 150 प्लस 100 तो इट्स 250, यानी अब आपकी नई डिमांड कितनी आ गई 250। देखो प्राइस कम हुआ, डिमांड आपकी बढ़ गई, लास्ट डिमांड आपका इंप्लीमेंट हो गया। मतलब ध्यान आपने इस बात का रखना है कि अगर आपको न्यू डिमांड या आपको न्यू प्राइस ढूंढने के लिए बोला जाता है तो उसमें क्या होगा, आपको इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो ऑलरेडी गिवन होगा। अगर आप ये देखें कि जो इलास्टिसिटी है उसका आंसर प्लस में गिवन है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था 2, तो आप माइनस लगाएंगे। अगर आपको इलास्टिसिटी का आंसर ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो आपने दोबारा से जो है वो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, माइनस एक बार ही लगाना है, और सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपने एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपना जो लास्ट डिमांड है उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि जो लास्ट डिमांड है वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने ये बात बोली थी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो लास्ट डिमांड का पार्ट भी है। पहले लास्ट डिमांड इंप्लीमेंट होगा जो हमें ये बताएगा कि प्राइस और डिमांड इनवर्स डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं, उसने डायरेक्शन बता देनी है। फिर ये चैप्टर क्या करेगा, ये उसका अमाउंट ऑफ चेंज बताएगा। तो प्राइस कम हुआ, डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, तो हम इसको बोलेंगे कि लो जी हमारा न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर गिवन होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज पुट करके देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज जो है वो निकाल लीजिए। तो आई होप कि आपको जो लेक्चर है समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होंगे तो उसको जरूर इनबॉक्स के अंदर लिखिएगा, जरूर उसको हम सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। सो डू इट वेरी वेल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन गुड बाय।